investing in insurance and other schemes, analyze wisely. Don't invest on emotional grounds, especially if the schemes are sold by close friends or relatives. Invest always in diversified portfolios. Some investment should be made on immovable property, some in gold form, some in pension fund, some in retirement benefits, some in real estate, even in agricultural land, some in RD and some in FD, etc. This reduces your portfolio risk. An important note here, if you if your investment is in one portfolio only, then the risk is very high. In my opinion, one should take one term policy that is 4 times of one's liability and one mediclaim policy covering one's family and parents. Always take professional advice for investments. There are two types of investment: quoted investment and non-quoted investment. Let's have a look at them. So what are quoted investments? Quoted investment means shares, mutual fund, any other investment made in quoted or listed securities. In case of shares and securities, if you sell after 1 year, it is treated as long-term capital gain. If your amount of capital gain is less than rupees 1 lakh, then you need not pay income tax. For short-term capital gain, you must pay 15% income tax. Investment in equity requires good knowledge of share market and equity analysis and evaluation of companies. That is why consulting a professional investment advisor is recommended. Investing in mutual funds is a good option for those who do not have time to study the share market. Earning money through investments requires patience. Let's have a look at non-quoted investment. Investment made in movable and immovable properties like flat, bungalow, land, gold, silver, etc. is referred as non-quoted investment. From income tax point of view, show your flat, bungalow, etc. under investment. Many business owners show their immovable properties under fixed assets. If you sell the property in future, the income tax department may charge this income as a short-term capital gain instead of long-term capital gain, which is chargeable at a higher rate. Take care in presenting the balance sheet. To invest is to purchase a financial asset from surplus cash or bank balance available with the business or individual for short-term basis or long-term basis with a view to provide income and or appreciation in the value from such investment activity. Let's have a look at some general rules to be noted before carrying out any investment. Before any investment activity. So first is the investment must always be done from the surplus cash. Debt should never be used to make investments in financial assets. Secondly, if surplus cash is available for short term, investments must be made in the short term financial assets. Short term cash must never be invested in long term financial instruments. However, long-term funds can be used for short-term investments or long-term investments depending upon the risks and market conditions. Thirdly, business cash should never be used for investments in risky assets like equity shares, equity mutual funds, etc. Fourthly, derivatives like futures and options are not investment in financial assets. They are usually used as hedge for fluctuation in prices. Next is always seek the advice of a financial advisor before making any investment activity, basically to determine the riskiness, return expectation, documentation, etc. Never make investments on your own if you don't have adequate knowledge about the financial asset. Next, before carrying out investment activity,
one has to determine the following: time period for which funds are available for investment, like a week or month or years, etc. Determine the riskiness of all the available financial instruments. Avoid investing in the financial assets that have chances of losing the capital. Choose a good financial advisor if you don't have adequate knowledge. Determine the expected return for each investment opportunity. Next is periodically evaluate the performance of each financial investment made, like returns on investment, riskiness on investment, market conditions for that investment, etc. If an investor wants to take risks to earn higher return, then he has to allocate a smaller portion of money from the free cash flow, which is not required by him, and then take the risk with complete awareness that he may lose full capital on such investment. Investment has to give return more than general inflation rate. However, if investments are very short term, like a week or month, then complete safety of money has to be priority. Let's have a look at this. Investment is the foundation for becoming rich and wealthy. So first point is save first. Every person should save at least 10 to 20% of his income. Control expenses. We have to learn to live within our means and avoid lifestyle inflation. Invest wisely. Our wealth should extend beyond our income. We have to put money to work by making smart investments and taking advantage of the time and compounding interest. Avoid loss of capital. Always take calculated risks and protect your capital from permanent loss of principal. Retirement plan. Always have a retirement plan and insurance. Increase ability to earn more. Improve your skills and knowledge to earn more. More income leads to more savings and thus leads to more investment. Most important, income minus investments is equal to expenses. How to get wealthy? Start investing early as soon as from first paycheck. Spend less than what is earned. Invest well. So these are the mantras of getting wealthy. Let's have a look at types of investments. Cash. Savings bank deposit is most simple and cash is always readily available. However, interest is very low and does not even cover the inflation. Fixed deposits. FDs are for specified term of say 1, 2, 3 or 5 years. Rate of interest covers the inflation. Bonds. Bonds are like debt instruments. Bond investments can be made in government bonds or bonds issued by corporates. Mutual funds. Mutual fund investments can be in equity mutual fund or debt mutual funds or hybrid funds. All those who do not have time and knowledge to analyze investments can choose mutual funds as they are basically managed by professional fund managers. Stocks. Investment in stocks of the company to participate in the success or profits earned by the company. Stocks give returns through dividends and appreciation. Stock investment is considered to be more risky than other investment categories. Other investment avenues are real estate investment trust, commodities like precious metals, gold, silver, etc., exchange traded funds. Okay, that's it. So over to you, sir. Yes, thank you, madam. Thank you very much. Today you are not feel well. Still you taken an initiative to read the book. This shows towards your dedication towards your work and commitment also. I am happy to say madam is also
editor of this book. She is very committed and dedicated in her profession also. She is also content writer. She is very professional and committed to delivery of services. Thank you, madam, for your today's reading. Thank you all of you. Welcome to the today's session, very important session. Today we are going to discuss. Today we are going to discuss investment. Myself, C. Hanumantrao Chaudhary, author of book Know Your Balance Sheet. Today our topic is very important topic for a businessman as well as salary holder. Even nowadays students also started investing from their student life. Investment क्या होता है? Investment is an asset that we purchase for generating the income that will be appreciated in the future. एक तो रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे आपके लिए, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, इंटरेस्ट. अदरवाइज आपका इन्फ्लेशन होगा. जैसे आप फ्लैट परचेज किया, उसका रेट इन्फ्लेशन होगा. दैट इज यू आर गेटिंग टू टाइप ऑफ बेनिफिट व्हाट एवर यू डू द इन्वेस्टमेंट्स. वन इज योर रेगुलर इनकम एज वेल एज इन फ्यूचर इन्फ्लेशंस. इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग द इनकम. मेन पर्पज जो है वो उसका इनकम जनरेट करना ही इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है. फाइनेंशियल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ बॉन्ड्स, गोल्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ये सब अपना फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं. हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली. इन्वेस्टमेंट आप कैसे वाइजली इन्वेस्टमेंट करना है. जैसे आपका सरप्लस फंड होता है वो आप कैसे यूज करना चाहिए. आपका जो फंड है वो कभी भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए. डाइवर्सिफाई ऑफ द पोर्टफोलियो. ये डाइवर्सिफाई क्या होता है हम आगे देखेंगे. आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये लिख के लेना है. जो भी आपका फाइनेंशियल गोल होता है, प्रोफेशनल गोल होता है, आपका पर्सनल गोल होता है, फैमिली गोल, हर एक चीजें आपको लिख के रखने से आपका गोल यू कैन अचीव इजीली. आपको इजीली आप गोल अचीव कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये करना है, उसमें शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल आपको बाइफरकेशन करना है. शॉर्ट टर्म गोल में फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ कार हो सकता है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेसमैन के लिए, फैक्ट्री शेड, फ्लैट्स, ये सब आप शॉर्ट टर्म गोल्स मींस 2 to 3 years 5 years में आपका ये गोल अचीव होना चाहिए. इसमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल आप लिख सकते हैं आपका अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल एंड व्हाट इज योर अर्निंग. आपका इनकम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से आप आपका गोल शॉर्ट टर्म और वाइड इसको कर सकता है. हमने कुछ एग्जांपल्स इसमें दिया हुआ है. दिस इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है. लॉन्ग टर्म गोल फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट. आपको ये बाइफरकेशन करना है. मेरा बच्चों के लिए एजुकेशन करना है तो उसके लिए डे वन से हम लोग किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आजकल एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली हुआ है. उसके लिए आपको डे वन से अभी से देखना है अपने को कौन सा एजुकेशन देना है और उसके लिए कितना खर्चा आ जाएगा. ये प्रॉपर आपको एनालिसिस करके आपको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना है. चिल्ड्रन मैरिज के लिए भी आपको खर्चा लगेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करना है. रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे अभी हर एक आदमी के लिए रिटायरमेंट एज होता है. इवन यू आर अदर इन बिजनेस और प्रोफेशन और आप कोई जॉब में हुआ तो वो आपको रिटायरमेंट लाइफ तो लेना ही है, क्योंकि आफ्टर 65-70 यू हैव टू गो फॉर रिटायरमेंट. फिर उस टाइम पे आपका रेवेन्यू कैसे आएगा, आपको आज से ही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. ये लॉन्ग टर्म गोल में होता है. जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स, अभी बहुत सारे जब मेरा क्लाइंट्स लोग इन्वेस्टमेंट होता है तो उनका ATC के लिए होता है, नहीं तो मेरा फ्रेंड ने मेरा LIC ले लिया, मेरा रिलेटिव्स ने बोला मेरे को LIC लेने के लिए, नहीं तो मेरा रिलेशंस खराब होगा उसके लिए मैंने LIC ले लिया. ऐसे बहुत सारे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं. उसके लिए जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना, जैसे LIC पॉलिसी है, आपको खुद को स्टडी करना, क्योंकि आपका पैसे है, आपका हार्ड मनी है, उसको आपको देखना है मेरा एक एक पैसे भी मेरा इन्वेस्टमेंट किधर जा रहा है, क्योंकि आपको हार्ड अर्न मनी आपको किधर इन्वेस्टमेंट करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना. कोई फ्रेंड्स ने बताया आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई रिलेटिव्स ने बताया चलो ये LIC ले लो, या उसके लिए इसमें क्या होगा आपका जो कैपिटल है वो भी लॉस होने का चांसेस रहते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग इसमें फंसा हुआ है. उसके लिए आपको ये देखना है
आपका जो भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका कोई रिलेशंस, कोई फ्रेंड्स का इमोशन नहीं होना चाहिए। आप खुद एनालिसिस करो, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग एक ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे एक बार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स में तो शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट बकेट में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इमोबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, पेंशन फंड है, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, पीएफ है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर लैंड है, आरडी, एफडी, ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ही इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिस्क बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट नोट, इन्वेस्टमेंट इन वन पोर्टफोलियो इज ऑलवेज हाई रिस्क। ये जो ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर एक के लिए ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरा जो सजेशन है, मैं सब क्लाइंट को, जैसे उनका इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी पॉलिसी एंड मेडिक्लेम आया तो मैं सबको ये सजेशन देता हूं कि आपका जो पॉलिसी है, टर्म पॉलिसी आपका लाइबिलिटी से 4 टाइम होना चाहिए। सपोज आपका लोन 1 करोड़ से, आपका जो पॉलिसी है, टर्म पॉलिसी, वो 4 करोड़ तक होना चाहिए। और आपका जो मेडिक्लेम पॉलिसी है कंपलसरी होना ही चाहिए, क्योंकि अभी कोविड में हम लोग देखा हुआ है, एक एक लोगों के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक उनका बिल आया हुआ है। सपोज आपका मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होता है उसके लिए। आपको अभी बहुत सारे लोग मेडिक्लेम पॉलिसी में भी टॉप अप एक ऑप्शन आया था, मैंने खुद भी टॉप अप करके लिया। बाय गॉड ब्लेसिंग किसी को भी कोविड नहीं आना चाहिए, बट एज ए प्रिकॉशन आपको मेडिक्लेम पॉलिसी टॉप अप लेके रखना बहुत जरूरी है। मैंने खुद टॉप अप 15 लाख करके रखा हुआ है। जैसे जैसे सिचुएशंस होता है, कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग क्यों नेगेटिव सोचना चाहिए, क्यों हम पॉलिसी लेना चाहिए, ये एक्चुअली गलत है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, बट बाद में जैसे जैसे अपना मैच्योरिटी बढ़ जाते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स देखता है लाइफ में, तो हम अपने को भी ये हो जाते हैं कि एजुकेट हो जाते हैं हम लोग। जरूर अपना फैमिली के लिए कुछ तो कुछ अपने को करना बहुत जरूरी है। आपका अब्सेंस में उनका कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका जो टर्म पॉलिसी है एटलीस्ट 4 टाइम आपका लाइबिलिटी का, आपको अर्न नहीं किया तो भी चलेगा, उनके लिए एटलीस्ट लाइबिलिटी तो रख के नहीं जाना है। उसके लिए सबको टर्म पॉलिसी जो है आपका 4 टाइम होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में आपका जो फैमिली का मेडिक्लेम पॉलिसी है वो भी आपको रखना बहुत जरूरी है। आपको ऑलवेज टेक द प्रोफेशनल लोगों का एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप लोग बुखार हुआ, सर्दी हुआ, तो आप अभी डायरेक्टली डॉक्टर के पास, पहले कैसे मेडिकल में जाके आप टैबलेट्स लेके भी आप ट्रीटमेंट ले सकता था, बट अभी जैसे सिचुएशन अभी खराब हुआ, ऐसे उसके लिए आपको हर एक बार आप डॉक्टर को जाके आपको एडवाइस लेके आप ट्रीटमेंट लेंगे। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप प्रॉपर प्रोफेशनल लोगों से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। आप किसी का सुन के, नहीं तो दूसरा एक मेरा फ्रेंड ने उधर इन्वेस्टमेंट किया, मैं भी उसके लिए उधर इन्वेस्टमेंट किया, ये आपके लिए बहुत रॉन्ग हो सकते हैं और आपका कैपिटल भी लॉस हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट्स होता है, एक होता है कोटेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है कोटेड इन्वेस्टमेंट और नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट, हम देख लेंगे इधर। कोटेड इन्वेस्टमेंट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये जो सब जो होता है ये कोटेड इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटी, अभी बहुत सारे लोग अराउंड लॉकडाउन से अभी लास्ट लॉकडाउन टू टिल डेट more than 1 crore people get open the new डीमैट अकाउंट्स। अभी बहुत सारे लोग घर में बैठ के शेयर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी चालू किया, क्योंकि अब जब हम लोग अभी रिटर्न भरने के लिए जाएंगे तो सब लोग 99% लोग शेयर ट्रेडिंग का एक्टिविटी ये बार बहुत लोग किया हुआ है। उसके लिए आपको ये देखना है, सपोज आप ट्रेडिंग करने से आपको 1000 रुपए प्रॉफिट हुआ तो आपका टैक्स कितना भरना है, ये भी आपको जानकारी बहुत जरूरी है। सपोज आपका जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स आप 1 साल के बाद सेल किया और आपका जो प्रॉफिट है वो बिलो 1 लाख है, आपको टैक्स भरना बहुत जरूरी है। आपने सपोज अच्छा शेयर्स लिया, आपको अभी बेचने का जरूरत नहीं है तो आप नहीं बेच लीजिए, वैसे नहीं तो आपको 15% टैक्स बैठेगा। सपोज आपको अभी का सिचुएशन मार्केट ऐसे है, जैसे प्रॉफिट मिला उतना बुक करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मार्केट इज वेरी वेरी वोलाटाइल
सो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको 15% इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। जैसे आप शेयर इक्विटी में जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, थोड़ा फार आपने ऊपर नीचे 52 वीक का आप स्टडी करेंगे, बाद में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए चालू कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे आपका फंडामेंटल स्टडी नहीं है, टेक्निकल स्टडी नहीं है, आप किसी प्रोफेशनल से आप गाइड नहीं ले रहे, आप खुद का दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस होने का बहुत जरूरी है। कौन सा भी बिजनेस प्रोफेशन रहने दीजिए, आपको पढ़ाई करके स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करना, उसके आगे आपको काम करना बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए इक्विटी शेयर्स में जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर आपको एडवाइस लेके, नॉलेज लेके आगे जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का ऐसे लॉजिक है, अभी मैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में पर मंथ, जैसे हम लोग पहले आरडी में इन्वेस्टमेंट करता था, ऐसे अभी बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता है। बट एसआईपी लॉजिकली क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे आपका आरडी में आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर मिलता है, बट ऐसे ही बहुत सारे लोगों का ऐसे मिसकॉन्सेप्ट है कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसे मेरे को कुछ फिक्स मिल जाएगा, उसके लिए मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है, उधर असेट मैनेजमेंट कंपनी रहते हैं, आपका सब फंड लेके वो इन्वेस्टमेंट करता है। आपका जो भी रिटर्न है वो उनका ऊपर डिपेंड रहते है, जो कंपनी आपका मार्केट में कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे, कौन सा इक्विटी में डाल रहे, कौन सा डेट में डाल रहे, इसके ऊपर आपका म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू भी डिपेंड होता है। उसके लिए आपको ये समझ के लेना है आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहे, कितना आपको प्रॉफिट हो रहे, वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी आपको अर्निंग मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर पेशेंस, कौन सा भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट डिसीजन लिया आपको लॉस भी हो सकता है। non-quoted investment, not non-quoted investment in movable and immobile properties like flat, bungalows, land, gold, silver, etc. These are the non-quoted investments. आप non-quoted investment में फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बंगलो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड, सिल्वर, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अभी के सिचुएशन में फ्लैट में आप इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल नहीं है, स्पेसिफिकली पुणे में तो एडवाइजेबल नहीं है। सपोज आपको 1 BHK फ्लैट लेना है तो मिनिमम 45 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ते हैं, 2 BHK लेना तो मिनिमम 75 लाख रुपीज प्लस आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स आपको सपोज 2 BHK का रेंट आपको ज्यादा से ज्यादा 20,000 से ज्यादा आपको रेंट नहीं मिलने वाला, मीन्स साल को ओनली 2,40,000 रुपीज। आपने बैंक में रखा 75 लाख रुपीज तो उससे ज्यादा आपको पैसे मिलता है विदाउट एनी रिस्क। कंसिडरिंग इन्फ्लेशन पहले जैसे नहीं होगा, जैसे अभी 2005-06 में, 2009-10 में जो लोग फ्लैट लिया हुआ है ये ऑलमोस्ट अभी डबल हुआ। बट इन फ्यूचर में लास्ट 2 years हम लोग देख रहे हैं नॉट मोर देन 10% कौन सा भी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा नहीं है। उसके लिए ये एडवाइस नहीं है आपको फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना है, आप खुद का रहने के लिए घर लेना है, दैट इज गुड। अभी हम लोग दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी जैसे शेयर मार्केट जैसे हो गया। अभी पहले कैसे ओकेजनली लोग किसी का शादी है उसके लिए आप परचेज करता था और खुद के लिए कुछ फंक्शन के लिए आप गोल्ड परचेज होता था, बट अभी गोल्ड एंड सिल्वर इज ट्रेडिंग लाइक ए शेयर्स जैसे वो भी ट्रेड हो रहा है। उसके लिए उधर भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप उधर भी एसआईपी कर सकते हैं, उधर आप पेपर गोल्ड भी ले सकते हैं। आप फिजिकल गोल्ड आपको लेने का जरूरत नहीं है, आपको किधर रखने का क्या करने का वो भी जरूरत नहीं है। गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। बट बहुत सारे लोग अभी इसमें अभी आया नहीं है, बट गोल्ड इन सिल्वर इज ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अभी आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में बहुत सारे लोगों का अभी सपोज आपने एक प्रॉपर्टी कंसर्न का आपका बिजनेस है, आपका खुद का फ्लैट भी है, खुद का बंगलो है, खुद का मशीनरी है, फ्लैट्स है, वो सब लैंड है, ये सब आप फिक्स एसेट में बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है। फिक्स एसेट में प्रेजेंट करने से क्या होगा, मेरा ये सजेशन है, आप फिक्स एसेट में जो फ्लैट है, जो पर्सनल एसेट्स है, आप उसको बंगलो है, आप उसको फिक्स एसेट में नहीं बताना चाहिए, वो आप इन्वेस्टमेंट में बताना चाहिए। फिक्स एसेट्स में बताने से क्या होगा, वो कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग इट एज एन फिक्स एसेट। इससे क्या होगा, इससे सपोज आप इन फ्यूचर में फ्लैट आपने सेल किया, आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो नहीं लेंगे, बट वो बोलेगा दिस इज ए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ए फिक्स एसेट, आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट में बताया तो आप कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन यूज करके उसको
लॉन्ग टर्म कैपिटल 20% आप टैक्स पे कर सकते हैं. दिस इज द ओनली लिटिगेशन फैक्टर्स, दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन फैक्टर्स. सो व्हाट आई एडवाइज यू, आपको जो भी दिखाना है, जो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, मींस आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया, बंगलो में इन्वेस्टमेंट किया, आपको इन्वेस्टमेंट अंडर हेड इन्वेस्टमेंट में बताना बहुत जरूरी है. आपको फिक्स एसेट में ये नहीं बताना चाहिए. जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी सरप्लस कैश लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना है. स्पेशली शेयर मार्केट में जब आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सरप्लस कैश से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल भी आपको सरप्लस फंड प्लानिंग करके आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग जैसे बिजनेसमैन में हम लोग देखते हैं तो किसी का करंट अकाउंट में 2-2 करोड़ ऐसे ही पड़ा हुआ रहते, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ रहते. दे आर नॉट मेकिंग द प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. वो कभी सोचता नहीं है ये पैसे मेरा इंटरेस्ट 2-3% ये हो रहे हैं, हम लोग इसको आगे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सके. इवन आपका लिक्विडिटी भी बहुत फास्ट हो जाएगा. अभी बहुत सारे ऑप्शंस आया हुआ है. आपका पैसे जो भी सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करके उसका अच्छा तरफ से आप जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट आप पैसे कमा सकते. और वो प्लानिंग नहीं होता है. आपको आज से प्लानिंग करना है. एज ए बिजनेसमैन, एज ए अकाउंटेंट आपको ओनर को भी गाइड करना है. उधर बहुत सारे बैलेंस दिख रहे हैं, वो अपने को लग रहा ही नहीं है. आपको एवरी मंथ अपने को पता है, अपने को सपोज 20 लाख अपने को एवरी मंथ खर्चे के लिए लगने वाले, अकाउंट में अपने को 40 लाख दिख रहे हैं उसमें. तो आप बोल सकते हैं 20 लाख ऊपर का जो सर हम लोग दूसरा किधर से इन्वेस्टमेंट करना है. खुद आपका बिजनेस रहो तो आप ऐसे सोच सकते हैं उसको किधर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें भी अर्निंग कर सकते हैं. ये सोचना बहुत जरूरी है. जो रूल है, जनरल रूल फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आपको एक जनरल रूल देखना है. जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है. ये रूल क्या है हम लोग देखेंगे एक एक. इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑलवेज बी डन फ्रॉम द सरप्लस कैश. अभी जैसे आपके पास पैसे है, एक बार आपने शेयर मार्केट में पैसे डाल दिया तो उसको वापस आप 1-2 साल उसको देखना ही नहीं है. ऐसे सरप्लस है आपका कैपेसिटी के हिसाब से. अभी मेरे हिसाब से मेरा कैपेसिटी में 1-2 लाख रुपए में डाल सकता हूँ, तो 1-2 लाख रुपए आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना है. सपोज आप किसी से लोन लेके, नहीं तो मेरा बिजनेस सैलरी पेमेंट करने के लिए पैसे लगने वाला है, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे लगने वाला है, वो आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं डालना है. जो भी आपको लगता है मेरा सरप्लस कैश है, ये किसी के लिए भी मेरे को नहीं लगने वाला है इन फ्यूचर में, वो उसी पैसे को आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. सरप्लस कैश इज अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म. इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स. जिससे आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी आपने करना है, तो शॉर्ट टर्म चाहिए क्या लॉन्ग टर्म चाहिए, आपको एनालिसिस करके करना बहुत जरूरी है. आपका जो भी सरप्लस है, जो आपने किसी बाहर से फंड लिया, मीन सपोज आपने लोन लिया, तो आपको शॉर्ट टर्म का फंड पर्पस का जो लोन लिया वो शॉर्ट टर्म में यूज होना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म में यूज करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है. सपोज आपको शॉर्ट टर्म आप लॉन्ग टर्म आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते, बट शॉर्ट टर्म आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते. इससे क्या होगा, सपोज आपने शॉर्ट टर्म फंड अपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया, तो आपका जो ऑपरेटिंग के लिए जो पैसे लगेगा वो आपको कैश क्रंच आ सकते हैं. जैसे आपने लॉन्ग टर्म का फंड शॉर्ट टर्म में करके फिर वापस उसको लिक्विडेट करके आप उसको वापस री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बिजनेस कैश शुड नेवर बी यूज्ड इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट लाइक इक्विटी शेयर. सभी जैसे बताया, आपका जो भी बिजनेस के लिए लगने वाला पैसे कभी भी आप शेयर्स लेने में इसमें इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है. डेरिवेटिव्स इज नॉट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड दिस इज यूज्ड फॉर एज ए हेज और फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस. जैसे आपने कुछ डॉलर परचेज किया, पाउंड परचेज किया, ऐसे भी आप इन्वेस्टमेंट करके उधर भी पैसे आप लोग अर्न कर सकते हैं. ऑलवेज सीक एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज वी आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ऐसे क्यों, बहुत सारे मैंने जब भी सबका इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए मैं जाऊंगा तो 99% दे आर सफरिंग द लॉसेस इन द शेयर मार्केट. कोई 1-2 लोग जो है वो प्रॉफिट कमाता है. उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो इंट्राडे में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो उनको लॉस होता ही होता है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं रहते, नॉलेज नहीं रहते, तो ये ऐसी चीज होता है. उसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों का एडवाइस लेके करना बहुत जरूरी है. और इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये भी देखना है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट. जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स में, तो आपका नॉमिनी कौन है और शेयर ट्रांसफर किसको करना है, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना बहुत जरूरी है.
अभी बहुत सारे लोगों का हम लोग देखा हुआ, कोई एक्सीडेंट में गया हुआ है, उनका हस्बैंड ने किधर इन्वेस्टमेंट किया, क्या क्या किया, किसी को भी पता नहीं है। उसके लिए मेरा सजेशन है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूडिंग एफडी है, आरडी है, आपका जो भी शेयर्स है, आपको एक ईयरली आपको एक एक्सेल शीट बनाना है। तो आपको उसको मॉनिटर करना है, उसका कभी मैच्योरिटी होता है। और आपका घर का लोगों को भी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो घर का लोगों के लिए ये सब चीजें किया हुआ रहते, बट आपका ऑप्शंस में सपोज आपको उनको नहीं मिला तो वो कुछ यूज नहीं है। उसके लिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉपर नॉमिनी कर दीजिए। इवन आपका करंट अकाउंट है, आपका एफडी है, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एफडी कर देंगे, आप नॉमिनी नहीं रखते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं उसके लिए नॉमिनी नहीं रहते हैं, आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बहुत सारे जगह पे होता है, बट उधर नॉमिनी जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत दिक्कत हो सकता है। अभी बहुत सारे मेरा क्लाइंट्स का इश्यू हुआ, उनका जब हस्बैंड का डेथ हुआ तो उनको इवन करंट अकाउंट से पैसे लेने के लिए उनको इतना तकलीफ हो गया, क्योंकि उधर नॉमिनेशन ही नहीं था। तो ये चीजें आपका सब देखना है, जो भी करना है प्रॉपर आपको, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, घर का एक मेंबर को तो समझा के बोलना है, एक एक्सेल शीट बनाना है, आपका जो भी यूजर आईडी है, पासवर्ड है, जो भी चीज है, आप एक एक्सेल शीट बनाना है प्रॉपर। तो आप आपका फैमिली को वो प्रोवाइड कर सकते, वो अल्टरनेट आपको वो देख सकते, मीन्स उनको नॉलेज भी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना है टाइम पीरियड फॉर विच फंड्स आर अवेलेबल। जैसे अभी मैंने बताया, आप मंथली भी, वीकली, मंथली, ईयरली भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको रिस्क कितना है वो भी देखना है। एंड अवॉइड इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज चांस ऑफ लूज। फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है, उसके लिए उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना, नहीं तो प्रॉपर नॉलेज लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। चूज द गुड फाइनेंशियल एडवाइजर, अगेन if you don't have adequate knowledge, and determine the expected return for each investment opportunity। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज आप अभी सेविंग अकाउंट में मेरे को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, एफडी में मेरे को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहा, तो आप शेयर्स में पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा है। नहीं तो आपको नॉलेज नहीं है, बेटर वे यू गो फॉर एफडी। एंड ज्यादा उसको और थोड़ा कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए, यू गो फॉर म्यूचुअल फंड। आपको टाइम देना है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट में ध्यान आप देना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, मेरा एजेंट है वो देखेगा, ऐसे नहीं है। मैंने कभी कभी रिपीट करता हूँ, तो ड्राइविंग आपको करना है तो ट्रैफिक रूल आपको जाना बहुत जरूरी है। बिजनेस आप करना है तो बिजनेस के लिए जो रूल्स लगता है जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे जो रूल्स है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ट्रैफिक पुलिस से पकड़ जाएंगे। उसके लिए जो भी आप बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर डिपेंड रहा तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत रहता है। कैसे उनके पास अभी हजारों आपके जैसे लोग रहेंगे, वो हर एक आदमी को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपने डीमेट अकाउंट भी ओपन किया, आपका मॉनिटरिंग रहना बहुत जरूरी है। मार्केट सपोज ऊपर गया तो आप बोल सकते हैं इमीडिएट इसको सेल कर सकते हैं, और मार्केट नीचे है आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। आप ऐसे करने से आपको ज्यादा से ज्यादा आप लॉस अवॉइड कर सकते हैं। आपको पीरियडिकली इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा है, रिस्क कितना है, मार्केट कंडीशंस क्या है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों का बैलेंस शीट जब हम देखते तो उनके अकाउंट्स में बहुत सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ये सब पड़ा हुआ रहता है बैलेंस शीट में। उनको ये पता नहीं है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, वो कब टाइम ये होगा, एफडी किसका है, किधर मैच्योरिटी होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चालू है, वो ऑटो रिन्यू हुआ क्या नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोग उसमें ध्यान नहीं देता है। उसके लिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है एक एक्सेल शीट बना के उसको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। If investor want to take a risk, you can earn the high return, more risk, more returns। स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी, जैसे उनका कैश फ्लो देख के वो रिस्की बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। आपका 1 रुपए भी कैपिटल लॉस हुआ तो वो आपके लिए बहुत कॉस्टली बनेगा। कैसे आपने अभी शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किया, अभी मार्केट तो ऊपर जा रहे बट सब शेयर्स नीचे, उसके लिए आपका कैपिटल लॉस बहुत होने का चांसेस होता है। उसके लिए आपको आपका बियरिंग कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट हैज टू गिव रिटर्न मोर देन जनरल इन्फ्लेशन रेट। However, if the investment are short term like a week, month, then complete safety of money has to be the priority। जैसे अपना इन्फ्लेशन जो रेट है अभी 8 to 9% अपना इन्फ्लेशन होता है, बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी का 5 to 6% है, ये किधर तो अपने इन्फ्लेशन
हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो अपना इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए हम लोग जनरली उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो इन्फ्लेशन को मैच होना चाहिए, अपना फ्यूचर प्लानिंग मैच होना चाहिए, अपना बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, से बहुत सारे पर्पस अपना इन्वेस्टमेंट का होता है। तो ये भी आपको देखना है इन्वेस्टमेंट आपने जो कर रहे हैं तो वो आपका इन्फ्लेशन के लिए मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इज द फाउंडेशन फॉर बिकमिंग रिच एंड वेल्दी। आपको क्या करना है, सेव फर्स्ट, एवरी पर्सन शुड सेव एटलीस्ट 10 to 20% ऑफ हिज इनकम। आपका जो भी इनकम है उसे 10 to 20% एवरी ईयर आप सेव करना ही चाहिए। आज से आप प्लानिंग कर दीजिए, आपका जो भी इनकम है आप 10 to 20% डिफरेंट पोर्टफोलियो में, एक ही पोर्टफोलियो में आपको नहीं डालना है। कुछ अमाउंट आपको शेयर्स में डालना है, कुछ अमाउंट गोल्ड में डालना है, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ म्यूचुअल फंड में। ऐसे आपको 10 to 20% आपको सेव करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो लाइफस्टाइल है आपका आपके हिसाब से अपना जितना इनकम है उस हिसाब से रखना बहुत जरूरी है। इससे भी आपका ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव हो सकते हैं। इन्वेस्ट वाइजली, और वेल्थ शुड एक्सटेंड बियॉन्ड अवर इनकम। वी हैव टू पुट मनी टू वर्क, मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड टेकिंग एडवांस टाइम एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे अपना मनी हम डबल कर सकते हैं वो आपको देखना है। अवॉइड द लॉस ऑफ कैपिटल, अभी जैसे मैंने बताया सेल्स में अभी बहुत सारे लोगों का कैपिटल लॉस हुआ है। आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है मेरा किधर भी कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लान करना है, जैसे आप रिटायरमेंट होने के बाद आपको कैसे आपको पेंशन, ऐसे बहुत सारे प्लान है, आप कैसे उसको इन्वेस्टमेंट करके आप रिटायरमेंट में आराम से जिंदगी आप जी सकते हैं। इंक्रीज एबिलिटी टू अर्न द मोर, improve our skill and knowledge to earn the more income leads to more saving and leads to more investments. This is not relevant to any investment particular, but ये अपना खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। हर एक बिजनेस एंड प्रोफेशन में कुछ सर्टन लेवल ऑफ बिजनेस आपका ग्रोथ हो गया, उसके बाद में आपको सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक बुक पढ़ा, व्हाट यू गॉट हियर वोंट गॉट देयर, मींस आपको जो इधर मिला वो आगे नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? गोल्ड स्मिथ का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा हर एक जिसको आगे जाना है, जिधर है आप, सपोज आपका टर्नओवर 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, इससे आपको आगे जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। वो बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, व्हाट यू गॉट हियर वोंट गॉट देयर, मींस आप आगे नहीं जा सकते। आगे क्यों नहीं जा सकते, वो बुक में बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप पहले जो किया वही आपने कर रहे हैं, उसके लिए आपका टर्नओवर उतना ही हो रहा है। आपको वो छोड़ के कुछ नया क्या करना है, आपको अभी एक लेवल आपको क्रॉस करना है तो आपको कुछ तो नया करना पड़ेगा। उसके लिए आपका स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपका पब्लिक स्पीकिंग आपको करना पड़ेगा, आपका मार्केटिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे आपका जो भी बिजनेस का डेवलपमेंट, कौन सा भी बिजनेस होने दीजिए, आपका प्रोफेशनल, आपको लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे आप लर्न करके आपका बिजनेस एक्सपांड करेंगे, आप जितना स्किल बनाएंगे उतना आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, उसके साथ में आपको प्रॉफिट होगा, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टिप्स हाउ टू इन्वेस्ट आफ्टर योर अर्निंग। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स वी आर एडेड इन द इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपका इनकम जो है एक तो एक्सपेंसेस होता है, जो बैलेंस रहता है वो इन्वेस्टमेंट्स होता है। हाउ टू गेट वेल्दी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एज सुन एज फ्रॉम द फर्स्ट पेचेक। जैसे आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारे लोग आफ्टर 30-40 मैरिज होने के बाद सोचेंगे अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने को अभी चालू करेंगे, मेरे को बच्ची हो गए, स्पेशली लड़की हुआ तो ज्यादा सीरियस लेंगे आप लोग, उसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तभी। बट जैसे आप अर्निंग स्टार्ट होगा, आप लोग सैलरी कितना भी होने दीजिए, आपका 10,000 होने दीजिए, 20,000 होने दीजिए, फ्रॉम डे वन से आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आजकल तो बच्चे लोग उनका पॉकेट मनी से भी, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनका पॉकेट मनी से वो लोग they are trading in purchase और they are purchasing gold, SIP, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, ऐसे बहुत सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट कर दिया। इवन बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्पेंड लेस देन व्हाट इज अर्न, कभी भी खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्ट वेल मींस आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा तरफ से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में कौन सा टाइप है? एक तो कैश, आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट में जो भी आपको लिक्विडिटी इमीडिएट मिल जाएगा, बट उधर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट इज आल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड 100% सिक्योरिटी। इट इज आवर मेंटालिटी, एक्चुअली 100% आपका एफडी में भी सिक्योरिटी नहीं होता है। जैसे पहले बैंक टेकिंग ओनली 1 लाख प्रीवियसली
सेफ्टी ऑफ योर FD, नाउ इट इज 5 लाख रुपीज, मीन्स आप 5 लाख तक आप बैंक को क्लेम कर सकते एज ए इंश्योरेंस। अदरवाइज आपका FD भी सेफ नहीं है, आपको ये भी ध्यान में रखना, आप मैक्सिमम 5 लाख आप बैंक से क्लेम कर सकते, समथिंग गोज रॉन्ग, बट कंपेरेटिवली अदर इन्वेस्टमेंट FD इज गुड। जैसे बॉन्ड्स है, लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है, उधर भी आपको अच्छा तरफ से रिटर्न्स मिलेगा। म्यूचुअल फंड जैसे मे बी इन्वेस्टेड इन डेट और इन इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स, जैसे असेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे वो डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होता है। स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ द कंपनी टू पार्टिसिपेट इन सक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। स्टॉक गिव रिटर्न थ्रू डिविडेंड्स एंड अप्रिसिएशंस। आपको एक तो डिविडेंड मिलेगा शेयर से इन्वेस्टमेंट करने के, उसका शेयर्स बढ़ेगा तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिस्की देन द अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट का कैसे वोलेटाइल है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिस्की। आपको इसका ज्यादा फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्टडी करके आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अदर इन्वेस्टमेंट्स में आता है रियल एस्टेट ट्रस्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटी लाइक प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, एक्सचेंज इन ट्रेड फंड्स लाइक शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ऑल दीस थिंग्स। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे प्लॉट है, अभी आप जो सिटी डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल एज पर एनालिसिस नाउ हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश इज नाउ डेवलपिंग, लाइक इन पुणे 2005-06 में जैसे ग्रोथ था, उस टाइम पे जैसे ग्रोथ स्टार्ट हुआ, अभी स्टॉप हो गया ग्रोथ, ऐसे अभी हैदराबाद एंड सिकंदराबाद इज द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर प्लॉट्स एंड फ्लैट्स। अभी उधर ग्रोथ चालू हुआ है, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, सरप्लस मनी है, आप खुद को स्टडी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, मैंने स्टडी किया है। पहले पुणे था, अभी पुणे का रियल एस्टेट ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, क्योंकि आप पुणे में ज्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी और अप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलने वाला। कैसे अभी वाकड़ में हम लोग देखा 2005-06 में 5 to 6 लाख में एक फ्लैट मिलता था, अभी अराउंड 75-80 लाख वो फ्लैट का रेट हुआ है, ऑलमोस्ट अभी सैचुरेट हुआ। अभी इससे ज्यादा कुछ बढ़ नहीं सकते, बढ़ा तो भी 5%, 8%, 10%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। Investment part we are now covered, and loans and advances is just 4 lines. I will explain this, no need to read. Loans and advances include any loans advances given to sister concern, relatives and friends. ये जो loans and advances जो बैलेंस शीट में दिखता है, तो एक तो आप लोन्स आपका सिस्टर कंसर्न कंपनी को पे किया हुआ रहते, फॉर एग्जांपल आपका अभी ऑलरेडी एक्स कंपनी प्रॉपर्टी कंसर्न है, अब दूसरा वाई कंपनी को आप ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो आपका रिलेटिव्स को पैसे दिया हुआ रहते, फ्रेंड्स को पैसे दिया हुआ रहते। आपको ये देखना है जो भी एडवांस दिया है वो सब कुछ, कोई कॉन्ट्रैक्टर का केस पे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी गवर्नमेंट के लिए दिया हुआ रहते, इसमें कुछ कंट्रोल भी नहीं होता है। अभी मैंने बहुत सारी कंपनी में देखते तो इसका रिकवरी का कंट्रोलिंग नहीं होता है। आपको ये देखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रॉपर वापस आया क्या नहीं, आपने जो भी एडवांसेस दिया हुआ है रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, वो भी आपको वापस आया क्या नहीं विद इन पीरियड में, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। Thank you for your patience. If you have any queries related to today's sessions, we can discuss. Again, Kote sir is not available due to his technical problems in Bhosari area. So we are continue this session. If you have any queries related to this today's session, you can raise your hand. I will unmute you and you can ask the questions. We have another 5 minutes of time. You can raise your hand. I will unmute. If you have any queries, we can discuss. If you have any queries, we are open our group November balance sheet till 8. And thank you Anjali madam once again. Today you are not feel well, still you taken the session, reading session. This shows your commitments, and this is a priceless what we are doing for a community as a whole, for all businessmen and accountant. There is no any intention, any profit making and any business growth. It is very clearly this is the knowledge sharing sessions. Send this session link to your friends and colleagues, which help to everyone, and you can spend 1 hour for your knowledge updations. This is help to all of you and your friends. If you have any queries related to today's session, you can post your, otherwise you
we have another 2 minutes. You can chart, otherwise we'll close the session. We'll meet next Thursday with current assets. You spread more and more. This is a free session. This is the main purpose of this session is one is to make our country $5 trillion economy. The purpose of this session is to make more and more businessmen success and more skill development of the accountant. Once these three things happen, definitely financial part will improve. This is the main purpose of the sessions. जैसे अकाउंटेंट का स्किल बढ़ गया तो उनका अकाउंटिंग परफेक्ट होगा, उन्होंने प्रॉपर अकाउंट ओनर को गाइड करेंगे. जैसे एज ए ओनर आप भी बिजनेस के बारे में समझ के लिया तो आपका बिजनेस ग्रोथ 100% होगा. भी मैंने बहुत सारे जो लोग रेगुलरली सेशंस अटेंड करते तो उनका फीडबैक आता है. जैसे वो लोग सेशन अटेंड करने को स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोग इसमें मैं देखता हूँ तो दे आर अटेंडिंग रेगुलरली, उनका करियर में बहुत सारे चेंज हुआ. फॉर एग्जांपल अभी समृद्ध है, वो ही इज अटेंडिंग रेगुलरली. जैसे ही एज ए अकाउंटेंट उनका पूरा थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया. उसके लिए उन्होंने मैसेज शेयर करता उन्हें ग्रुप मेरा पर्सनल इसमें, सर इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ. ऐसे आपका फ्रेंड का भी बहुत फायदा हो सकता है, उसके लिए आपका फ्रेंड का ग्रुप में भी आप भेज दीजिए. जैसे बिजनेसमैन लोगों का भी सोच बहुत चेंज हो गया, कैसे हम लोग कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं. अभी जैसे उन्होंने सेशन अटेंड होने के बाद उनका बिजनेस में वो सोचने को चालू कर दिया. ऐसे वो बोल रहे सर जैसे मैंने सोचने को चालू किया मेरा 4-5 लाख तो महीने का प्रॉफिट बहुत फर्क पड़ा हुआ. जैसे आपका जैसे सोचते आप वैसे बनता है, उसके लिए आपका सोच बदलो. आपका जैसे आप बिजनेस में जाएंगे तो आप एनालिसिस करने का चालू हो जाता है. जैसे बिजनेस सेशन अटेंड करते तो बाद में जैसे वो नेक्स्ट डे उन्होंने ही इज इम्प्लीमेंटिंग सम गुड थिंग्स. बहुत सारे लोग मैंने जैसे बताया वैसे उन्होंने हर एक चीजें उनका बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन करने को चालू कर दिया तो उनको डिफरेंस दिखने के लिए चालू हो गया, कैसे कंट्रोलिंग सिस्टम आ गया, उनको ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी में भी थोड़ा फर्क दिख रहे हैं. उसके लिए आपको ये सेशन अटेंड करके आपका नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करके इसका फायदा लेना बहुत जरूरी है. जिसे अंजलि मैडम आज शी इज नॉट गेट वेल, स्टिल शी इज गिवन टाइम, इज वेरी थैंकफुल. And thanks to all of you. If you have any queries related to today's session, you can ask in our groups. And if you want anything you want to share, we have another 2 minutes. You can share.